students, today we will start with a new topic about determiners. Now, what is determiner? Determiner is used before noun to clarify noun. This is also known as adjective. इसे हम adjective की तरह भी use करते हैं. For example, pen, chair, students, water. These are nouns. When we use these determiners before noun, this clarify noun. For example, my, a, few, some. These are determiners. When we add these determiners before noun, these clarify noun. For example, जैसे है my pen. पेन के साथ हमने my यूज किया, then it clarify noun कि पेन है किसका है, my pen. Chair, a chair. Students, how many students? Few students. What, some water. These are the example of determiners. Now, next types of determiners. There are four types of determiners. First is article. As you all know, articles are a, and the. These are further divided into two categories. These are indefinite and definite. A and an is your indefinite article and the is your definite article. Next type of determiner is demonstrative. These are example of demonstrative determiner is this, that, those, these. Next, possessive. Possessive determiner my, your, our, his, her. जहाँ पे हमारी possessiveness दिखती है, हमारा है, उनका है, किसी और का है, किसका है, तो यहाँ पे हम ये सारे एग्जाम्पल यूज करेंगे. नेक्स्ट इज क्वांटिफायर. क्वांटिफायर इट एज इट्स नेम रेफर क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी बताएगा. सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच. कोई भी क्वांटिटी के बारे में हमको बताएगा. नेक्स्ट हम वन बाय वन सभी आर्टिकल्स के बारे में, सभी डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर, इनके बारे में डिटेल से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमें डिटर्मिनर्स यूज करने हैं in sentence before noun. Now first is our articles. In article, first we will understand indefinite article. These are a and an. First, a is used before a word beginning with the consonant sounds, and we use before words beginning with the vowel sounds. As we all know, a, e, I, o, u. These are vowel sounds. I am talking about sounds. जितने भी words that begins with the vowel sounds, ये सारे vowel sounds जिस word में use होंगे, उससे पहले हम we will use before them an. और बाकी जो consonant sounds से जो भी word start होंगे, वहाँ हम an use करेंगे. For example, a cat, a ball, k, b. These are consonant sounds. Here, an egg, egg, a is the sound of vowel sounds. यहाँ पे vowel sound से start हो रहा है. For example, another example of an umbrella, union. यहाँ पे आप देख रहे हो यू यहाँ पे यूज हुआ है, बट हम साउंड्स की अगर बात करते हैं तो ये य से स्टार्ट होता है. यूनियन, यहाँ पे हम एन का यूज नहीं करेंगे. तो द को दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, दी एंड द. द हम कहाँ पे यूज करेंगे और दी कहाँ यूज करेंगे? दी हम यूज करेंगे बिफोर वर्ड that begin with vowel
वोवल साउंड, वहां पर हमने एन का यूज किया, और द को हम दी कहाँ प्रोनाउंस करेंगे, जहाँ पे वोवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा, और द कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे बिफोर वर्ड begin with consonant sound. तो ये इसकी एक पहचान है, दी और दो हमने कहाँ पे प्रोनाउंस करना है। आई विल शो यू दिस पेन, तो मैं आपको ये बताऊंगी दिस इज अ पेन। अगर मैं ये बोलती हूँ दिस इज द पेन विच आई गॉट फ्रॉम माई ब्रदर, ये पेन अब ये इसकी स्पेशलिटी बन गई है बिकॉज ये मेरे जो ब्रदर ने ये मुझे गिफ्ट में दिया है, इसलिए अब ये एक स्पेशल पेन हो गया है और इसकी कुछ स्पेशलिटी है, अब ये पर्टिकुलर पेन बन गया है, तो हम इसको द पेन बोलेंगे। अदरवाइज दिस इज अ पेन और दिस इज अ मार्कर। ओके, let's see with an example. This is the pen I got from my brother. Next, before a particular class or group. For example, कोई particular class है, फॉर एग्जाम्पल हम एक कैट की बात करते हैं, दिस इज अ कैट, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा, ठीक है, एक कैट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी कैट की, पूरी इनकी कैट फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे उसके ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि जो कैट है दीज आर पेट एनिमल्स, तो यहाँ पे हम द कैट यूज करेंगे। द कैट is a domestic भी बोल सकते हैं, domestic animal। अब यहाँ पे कैट, सिर्फ एक कैट की बात नहीं है, पूरे ग्रुप की, पूरे क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। The cat is a domestic animal. Now next, name of ocean, हम द का यूज कहाँ करेंगे, बिफोर the name of oceans, rivers, mountains, holy books, unique people or object. For example, the Indian Pacific, mountain, the Himalayas, holy book, the Bible, unique people, the president. These are unique people, the president. और object like monuments हो गए, the Taj Mahal, the Eiffel Tower. Next, before noun of families, race, etc. The for example, name of families, the Sharmas, ठीक है, पूरी फैमिली के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, द शर्मास। किसी रेस की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज या फिर आर्यंस, ब्राह्मण्स, और ठीक है। नेक्स्ट इज आवर पोजेसिव डिटर्मिनर्स, माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, etc. These are possessive nouns. For example, this is her house. Her is possessive determiners. Possessive adjective भी बोल सकते हैं, pronoun भी बोल सकते हैं। Next, his father is a teacher. His. Another example के through हम इसको solve करेंगे। Another example के through हम समझेंगे इसे। Your
adjective. Demonstrative determiners. This, that, those, these. These are the examples. First, that जिसका plural जो है वो those होता है. That is used for refers to a person or thing far away from the speaker. कोई भी चीज स्पीकर से अगर दूर है तो हम that का यूज करेंगे. और दूसरा जो उसका यूज है that का यूज वो हम कहाँ करते हैं? यूज that to avoid the repetition of preceding noun. For example, I have red dress. Because अब हम दोबारा से उस रेड ड्रेस के बारे में नहीं लिखेंगे. I have red dress. That one is my favorite. यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने अवॉइड किया है रिपीटिशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन को. जो नाउन है आपका रेड ड्रेस, हमने उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया. रेड ड्रेस की जगह हमने दैट लिखा है. ठीक है, आई हैव रेड ड्रेस, दैट वन इज माई फेवरेट. तो यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है. और हम दैट का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम किसी पर्सन या किसी थिंग की अगर बात करते हैं दैट इज फार अवे फ्रॉम अस. ठीक है, दैट वन इज माई फेवरेट. वो मेरा फेवरेट है. दैट फ्लावर इज सो ब्यूटिफुल. बिकॉज वो मेरे नियर नहीं है, वो कहीं दूर है. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, दिस का हम देखेंगे. दिस इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दीज होता है. दीज रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट नियर टू द स्पीकर. अब मेरे हाथ में एक मार्कर है. ठीक है, दिस इज माई पेन. दिस इज माई पेन. यहाँ पे हमने दिस जो है डिटर्मिनर यूज किया है. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज ऑफ ब्लैक इन कलर. This pen is of black in color. Next and last is our quantifier determiner. These are the example of quantifier determiner. Some, any, little, much, many, few, more, less, etc. For example, first is our sum. We will understand with these examples. First is sum, where we will use sum, where we use sum in affirmative sentence. Affirmative means positive sentences with uncountable and plural countable noun. For example, need some sugar. Here, this is the affirmative sentence. Sugar is uncountable noun. यहाँ पे हमने सम का यूज किया बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है. शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन. और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. अनदर एग्जांपल ऑफ सम इज देयर आर सम चिल्ड्रन in playground. Children, ये आपका काउंटेबल है, प्लूरल है. यहाँ पे हमने सम का यूज किया. काउंटेबल है और प्लूरल है. चिल्ड्रन को हम काउंट कर सकते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन? सम चिल्ड्रन. दैट मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं. वो काउंटेबल है. ठीक है, प्लूरल है. यहाँ पे अनकाउंटेबल था शुगर. यहाँ पे हमने सम का यूज किया. Another example of sum, कहाँ पे हम यूज करेंगे सम का? यूज इन क्वेश्चन व्हेन अ पॉजिटिव रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड. हम जब क्वेश्चन करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे एक पॉजिटिव रिप्लाई, एक पॉजिटिव आंसर. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम coffee? Would you like some
सम कॉफी, हम एक पॉजिटिव आंसर, एक पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रिप्लाई, didn't he give you some money? क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? Didn't he give you some money? नेक्स्ट आपका, ये आपके हो गए सम के एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज आवर एनी. एनी हम यहाँ यूज कहाँ करेंगे? वी विल यूज एनी इन अ क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इफ समथिंग एग्जिस्ट और नॉट. किस कुछ जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं है, जो मैं कुछ पूछ रहा हूँ वो एक्चुअल में है, आपके पास एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, have you any problem? ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा और एक पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पे पूछा कि एग्जिस्ट करता है. हैव यू एनी प्रॉब्लम, कि आपके पास ये चीज है, प्रॉब्लम में हो आप या नहीं हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, do you have any money? In negative sentence, to say that something does not exist, I don't have any money. एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी हमने एनी का यूज किया. I didn't solve the question. Next is our quantifier example of these: little, little, a little, the little. Little refers to where we use this little, we use with uncountable nouns. Uncountable means जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम little का यूज करते हैं. और little में भी हम little, a little, the little यूज करते हैं. little का यूज हम कहाँ करते हैं? सब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. ये नेगेटिव में होता है इसका आंसर, मतलब little बिल्कुल ना के बराबर. फॉर एग्जाम्पल, there is little milk left. There is little milk left, मतलब ना के बराबर मिल्क बचा हुआ है. He had little water. उसके पास ना के बराबर पानी था. नेक्स्ट, a little. A little we use in a small amount of something without emphasis. जब हम किसी चीज पे emphasis नहीं डालते, small amount है, मतलब affirmative है, ये आपका नेगेटिव है little, और ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा. A small amount of something without emphasis. For example, I add a little milk. I add a little milk in my tea. मैंने मिल्क में कुछ मिल्क डाला, यानी कि समथिंग, जो कि एम्फेसिस किया हमने कि कुछ है, दैट मीन्स समथिंग इज इन एग्जिस्टेंस. Another example of a little, he had a little
knowledge. Knowledge is also a uncountable noun, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है knowledge. He had a little knowledge. A little मतलब something, there is something, कुछ है उसके पास जो कि है at least, जिसको हम बोल सकते हैं at least something is there. Last is our the little, the whole of any particular quantity. The whole of any particular quantity. He drank the little. He drank the little milk he had. जितना भी मिल्क उसके पास था उसने वो पी लिया. This is the whole of any particular quantity. Whole of a particular quantity. जो मिल्क. Next we will do few. Few is used with plural countable noun. These are countable nouns. Few smaller number और negative sentence में हम use करेंगे few, जहाँ पे smaller number of quantity हो और वो negative में हो. For example, there are few students. Next is a few. A few is used in a small number without emphasis or in affirmative sentence, means in positive sentence. A few. He makes a few mistakes. मिस्टेक्स आपकी काउंटेबल है बिकॉज हम उसको काउंट कर सकते हैं. उसने एक मिस्टेक की, दो मिस्टेक्स की. ही मेड अ फ्यू. अ फ्यू मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ये पॉजिटिव में है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है जो कि एग्जिस्ट करता है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू. आई नीड a few students for project work. Next is our the few. The few is used in the whole of a particular number. जो अमाउंट है, जो नंबर है, उसमें से कुछ एक अमाउंट. The few. I corrected the few mistakes which I have done. जो थोड़ी बहुत गलतियां मैंने की उसमें से I corrected, उसमें से मैंने कुछ एक ठीक किया. I corrected the few mistakes which I have done. It's our much or many. Next we will do much or many. इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे. Much used with uncountable noun like little. Little भी क्या था? Uncountable noun में यूज करते थे हम. और much large amount हम इसमें यूज करेंगे. Many used with plural countable noun. इसको हम countable noun में यूज करेंगे और जो कि फ्यू की तरह है, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. और जो मेनी है वो लार्ज नंबर शो करता है कि एक लार्ज क्वांटिटी है. इसमें फ्यू में स्मॉलर नंबर और लिटिल में स्मॉलर अमाउंट, ये डिफरेंस है इसमें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टू मच food for me. ये लार्ज अमाउंट में है, अनकाउंटेबल है. फूड को हम काउंट नहीं कर सकते. Another example,
this is too much food for me. This is too much money. This is too much money. Again, money is uncountable noun. Another example of many. Many we use with plural countable. For example, many students are absent. Many students are absent. Many of them are hard working. Many of them जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, काउंट कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में है, लार्ज नंबर में है. दीज आर काउंटेबल, दीज आर अनकाउंटेबल. दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन मच और मैनी. मच और लिटिल में हमने डिफरेंस देखा, दोनों में सेम है. अनकाउंटेबल यहाँ पे यूज होता है, बट इसमें स्मॉलर अमाउंट होता है. मैनी भी हमने देखा काउंटेबल है, फ्यू भी काउंटेबल था, बट मच जो है, मैनी जो है वो लार्ज नंबर को बताएगा और शो करेगा. फ्यू जो है आपका वो स्मॉलर नंबर शो करेगा. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज आवर मोर एंड लेस. More we use in plural uncountable noun which refers to a quantity greater than another quantity or amount. For example, you drink more water. Second, you have more money than your friend. These are the examples of more. Uncountable nouns. Water is uncountable, money is also uncountable noun. And last is our less. This is used in uncountable noun which refers to a group of things that is smaller than another group. For example, you drink less water. I have less money than